And don't worry about the solutions. ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसका मैं आपको सोल्यूशन नहीं दूंगा. डोंट वरी. ऐसा नहीं है कि प्रफुल्ल सर ने आज बोला है, कल बोला है, परसों बोला है और वो सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवाएंगे. ऐसा नहीं है. मैं चाहता हूं कि आप खुद ट्राई करें. फाइनली मैं सोल्यूशन बताऊंगा ही बताऊंगा. डोंट वरी. आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा. बिलीव मी. ओके. So in last class, we studied about the maxima and minima of one variable, and several questions, variety of questions we have done of maxima and minima of one variable. Today, I will start a new topic and very, very interesting topic, partial differentiation. Partial differentiation. Can anybody tell me what is the meaning of partial differentiation? कोई बता सकता है? Sir, to differentiate something partially. To differentiate something partially, correct. Then what is the meaning of partially? Sir, आधा कर. What? This slide is, the slide is visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बताइए आप क्या बोल रहे थे? आप क्या बोल रहे थे? Sir, partial means a part of it. Can you elaborate? Just a part. Can you elaborate? सर पार्शियल डिफरेंशिएशन मीन्स मतलब सर बहुत सारा वेरिएबल है लेकिन कोई एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करना. वेरी गुड. तो बाकी वेरिएबल्स का क्या करेंगे जो बच जाएंगे? सर They will be constant. सर जैसे f of x इक्वल टू एक्स हुआ है तो इसको मैं सर अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करे तो सर इसमें f of x इक्वल टू एक्स हुआ है, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करे तो सर ये हो जाएगा y प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स. सर ये जो डी वाई बाई डी एक्स आया है ये हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन. Okay. So you all are telling very correctly. The meaning of partial differentiation is that we are differentiating the given function partially. We are differentiating the given function partially. देखिए, अब तक आपने स्टडी क्या किया? आपने स्टडी किया है कि y is equal to fx एक फंक्शन है. This function y is equal to fx is called single variable function because x is the independent variable and y is dependent variable. There is only one independent variable and one dependent variable. तो अगर आप y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज देयर इज वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली. और इन अदर वर्ड्स, इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू y, you can do very easily because there is one independent variable and one dependent variable. So if there is one independent variable and one dependent variable, then in that case the differentiation is called ordinary differentiation. I repeat, if there is one independent variable and one dependent variable, then the differentiation is called ordinary differentiation. But if there are more than one independent variables, for example, u is equal to function of x, comma, y, comma, z. It's a function of three variables. How many independent variables are here? Three independent variables are here: x, y, and z. These independent variables are independent, right? X, y, z are independent variables, and u depends on x, y, z. So u is dependent variable. So in this function, there are three independent variables and one dependent variable. Or you can say, in this function,
there are more than one independent variable. Just a minute, hold on. हेलो, क्लास में हो? हेलो, क्लास में हो? क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? आवाज नहीं आ रही। हेलो, 11:30 है ना क्लास का? ओके ओके ओके, बाय बाय। ओके, sorry for the perturbation. So this function is of more than one independent variable. If there is more than one independent variable, and if you want to differentiate this u with respect to x only, then we have to assume the remaining variables y and z as constants. If you want to differentiate this u with respect to y only, we have to assume remaining variables x and z as constants. If you want to differentiate this u with respect to variable z, then we have to assume the remaining variables x and y as constants. तो अगर हम वेरिएबल u का किसी एक वेरिएबल x के, y के या z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, तो हमें रिमेनिंग वेरिएबल्स को कांस्टेंट एज्यूम करना पड़ेगा, and this is called the partial differentiation. This is called the partial differentiation. So partial differentiation always used for the functions which is more than one independent variable. क्योंकि अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन हुआ, तब तो हम जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो तो एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा, तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुए तो प्रॉब्लम है, इसलिए हम पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन कोई नई बात नहीं है, इट्स जस्ट एन ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। It's just an ordinary differentiation, but keep in mind one thing, that we have to assume remaining variables as constants. आप x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y z फंक्शन को, y z वेरिएबल्स को कांस्टेंट एज्यूम करना पड़ेगा। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x z वेरिएबल्स को कांस्टेंट एज्यूम करना पड़ेगा, और अगर z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x y को कांस्टेंट एज्यूम करना पड़ेगा। This is called partial differentiation. इसके कुछ स्पेशल नोटेशंस होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव. देयर आर सम नोटेशंस and there are some fundamental formulas. Before move to exactly at partial differentiation, I would like to tell you something about function of two variables. So just see, function of two variables, especially z is equal to fxy. This is called function of two variables. You can see there are two variables x and y here. These two variables are independent variables. ये थोड़ा सा एरो गलत बन गया. These are independent variables and this is dependent variable. ये थोड़ा सा एरो उल्टा इधर उधर हो गया. So z is dependent variable here and x and y are independent variables here. This is called a function of two variables, right? Okay. देखिए जब आप फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की बात करते हैं, y is equal to fx फॉर एग्जांपल, when we talk about the function of one variable, तो इसका डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है the values of x at which the function is defined. If there is one variable function, say y is equal to fx, then the domain will be the values of x at which the function is defined. Similarly, z is equal to fxy आपका दो वेरिएबल का फंक्शन है, टू वेरिएबल का फंक्शन है,
तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई. यस, द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई. दिस विल बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल. एक्स और वाई दोनों की वैल्यू होनी चाहिए जिस पर फंक्शन डिफाइंड है. द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स एंड वाई एट विच द फंक्शन इज डिफाइंड. राइट, ध्यान रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ x की वैल्यू पर डिफाइंड है, y की वैल्यू पर डिफाइंड नहीं है तो चलेगा. ऐसा नहीं चलेगा. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ y की वैल्यू पर डिफाइंड है, x की वैल्यू पर डिफाइंड नहीं है. ऐसा नहीं होना चाहिए. x y दोनों की वैल्यू पर फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए. तो आपका ये एक पॉइंट कहलाएगा. दिस इज ऑर्डर्ड पेयर. Let's take some fundamental, some basic example I am taking for function of two variable. This fxy is equal to 3x square y minus 2 plus y cube. It's a function of two variable because there are two independent variables here, x and y. If we want to find f of 0, 3 and f of 2 minus 1, we can find very easily. What is the meaning of f of 0, 3? The meaning of f of 0, 3 is mean put x is equal to 0 and y is equal to 3 in this function. What is the meaning of f of 2 minus 1? It means put x is equal to 2 and y is equal to minus 1 in this function. So we can easily evaluate the value of f of 0, 3 and f of 2 minus 1 by putting x is equal to 0 and y is equal to 3 in the given function, and x is equal to 2 and y is equal to minus 1 in the given function respectively. So f of 0, 3 will be 25 and f of 2 minus will be minus 15. I think there should be no problem regarding this because it's quite simple. If anybody has any doubt, then ask me please. No doubt, sir. Okay. So this is function of two variable. Let me talk about a छोटा सा हम discussion कर लेते हैं. Let me talk about the domain of the function of two variable. Actually, function of two variable का domain find करना या कुछ और find करना आपको नहीं आएगा question में. लेकिन function of two variable का study अगर हम कर रहे हैं, क्योंकि partial differentiation के लिए हम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल, फंक्शन ऑफ फोर वेरिएबल इनका स्टडी करेंगे. मेनली हम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का स्टडी करेंगे. तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहा हूं. दैट्स इट. राइट, सो फाइंड द डोमेन ऑफ ईच फंक्शन. दिस इज फर्स्ट फंक्शन. ओके, दिस इज फर्स्ट फंक्शन f of xy is equal to 3x minus 2y square. Can anybody tell me what will be the domain of this function? Can anybody tell me what will be the domain of this function? So the value of x and y. Then what will be the values of x and y? All real number. Yes, correct. You can put any value of x and any value of y here. At each and every value of x and y, the function is defined. There is no value of x and y at which the function is not defined. At each and every value of x and y, the function is defined. तो x और y की हर वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड है. इसका मतलब इसकी जो डोमेन है वो बेसिकली, ध्यान रखना, ऑर्डर्ड पेयर में आपको लिखना आना चाहिए क्योंकि दो वेरिएबल का फंक्शन है, एक वेरिएबल का फंक्शन नहीं है. ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है स्मॉल ब्रैकेट फर्स्ट एलिमेंट फॉर x वेरिएबल एंड सेकंड एलिमेंट फॉर y वेरिएबल. सो ऑल द रियल नंबर्स कॉमा ऑल द रियल नंबर्स. So this will be the domain of this function. Since f of xy is defined for all real values of x and y, the domain of f is the set of all points in the xy plane. Yes,
the set of real numbers for x, the set of real numbers for y. Okay. Now, can anybody tell me what will be the domain of this function? Yes, कोई बताएगा इसका डोमेन क्या होगा? Sir, all real number except x equal to 1 and y equal to 1. x equal to 1 and y equal to 1. अच्छा, आपने ये इस बेस पे बोला है क्योंकि x is equal to 1 और y is equal to 1 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो That time it will be undefined. यस यस, तो x और y की कोई और वैल्यू नहीं हो सकती क्या जिसपे ये 0 हो जाए डिनोमिनेटर? Sir, if x y equal to 0, then देखिए, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि the domain of this function will be definitely all the real numbers excluding the values of x and y at which this is equal to 0, because there can be infinite values of x and y at which 2x plus y minus 3 is equal to 0. ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है जिस पर 2x plus y minus 3 is equal to 0 हो जाए. हम सिर्फ एक वैल्यू की बात नहीं कर सकते यहाँ पे, right? So gxy is defined as long as 2x plus y minus 3 is not 0. This is the only thing. So the domain is the set of all points x and y in the xy plane except those which lies on this line, that is 2x plus y is equal to 3 or 2x plus y minus 3. क्योंकि x और y की ऐसी काफी वैल्यूज हो सकती है जिसके लिए 2x plus y minus 3 का वैल्यू 0 हो सकता है. ओके, आप बहुत सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2x x 2 y minus 1. yes 2x plus y is equal to 3, right? It means yes x is equal to 0, y is equal to 3 हो सकता है, x is equal to 1, y is equal to 1 हो सकता है, x is equal to 1 by 2, y is equal to 2 हो सकता है. So there are infinite number of values of x and y at which 2x plus y is equal to 3 or 2x plus y minus 3 is equal to 0. So except those points, all the values of x and y will be the domain of this function. Any question? Sir, except which? No, sir. You said, sir. Yes, please. Sir, except those points means which points, sir? At मैंने बताया ना आपको, except those points at which 2x plus y minus 3 is equal to 0 or 2x plus y is equal to 3. okay, sir. Right? x और y की वो वैल्यूज हमें छोड़ देनी है जिसके लिए 2x plus y is equal to 3 हो रहा है या 2x plus y minus 3 is equal to 0 हो रहा है. Now you got it? Yes, sir. Okay. So this is the small presentation of function of two variables. That what is the meaning of function of two variable, and how we can find the value of function of two variable at different values of x and different values of y, and how can we evaluate the domain of function of two variables. So this is the small presentation of function of two variable. ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है, क्योंकि हम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल को फ्रीक्वेंटली काम में लेंगे. द इम्पोर्टेंट पार्ट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन. ओके गाइस, अपनी पेन पेपर उठाइए सबसे पहले, और मैं जैसे जैसे बोलता जा रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाइए. प्लीज पिक द पेन एंड पेपर. देखिए,
For example, I am taking this function of x y of two variable. I am taking, आप भी लिख लीजिए, let f of x y is a function of two variable. Let f of x y is a function of two variable. ओके, तो हमने ये दो वेरिएबल का फंक्शन लिया. अब इसका हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं. फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है एक बार. तो उसका सिंबल क्या होगा? तो सबसे पहले लिखिए आप नंबर वन एफ एक्स, दिस एफ एक्स, ये लिखिए आप, ये वाला एफ एक्स, एफ सफिक्स एक्स, इसका मतलब होता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स. इसका मतलब क्या होता है? डेल एफ अपॉन डेल एक्स. एफ सफिक्स एक्स इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स. इसका मतलब ये होता है दिस इज द सिंबल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन गाइस. दिस इज द सिंबल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन. ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का सिंबल डी अपॉन डी एक्स होता है, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल डेल अपॉन डेल एक्स होता है या डेल अपॉन डेल वाई होता है, व्हाटएवर. तो इसका मतलब यह है, जो मैंने आपको पॉइंट 1 लिखवाया है, लिखिए. आपने पॉइंट 1 क्या लिखा है? एफ एक्स इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ with respect to x. First order partial derivative of function f with respect to x. ये इसका मतलब है, ये इस सिंबल का मतलब है कि we are differentiating the given function partially with respect to x one time, first order. इज इक्वल टू, इसी के इज इक्वल टू में चलने दीजिए, इज इक्वल टू दिस इज द फंडामेंटल फॉर्मूला. आप ये नोट डाउन कीजिए. ये फंडामेंटल फॉर्मूला है. जैसे हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन होता था, वैसे ये फंडामेंटल फॉर्मूला है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव. डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f of x plus h comma y minus f of x comma y divided by h. देखिए, ये फॉर्मूला वही वाला है जो आपने 12th क्लास में ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के लिए पढ़ा है. वहां पे एक वेरिएबल के फंक्शन की बात होती है, इसलिए एक वेरिएबल के जब फंक्शन की बात होती थी तो ये y नहीं होता था. आपको याद दिलाता हूं मैं, ये y नहीं होता है और ये y नहीं होता है. तो वहां पे df अपॉन dx का क्या फॉर्मूला बनता था? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x डिवाइडेड बाय h. याद आया? हाँ सर. Yes, sir. बिल्कुल. यहां पे दो वेरिएबल का फंक्शन है, इसलिए कॉमा y आपको लगाना पड़ेगा. Because we are taking f of x y, the function of two variable. एक बात और, if you are differentiating with respect to x partially, तो यहाँ पे x plus h हो जाएगा. If you are differentiating with respect to y, तो यहाँ पर y plus k हो जाएगा और सिर्फ यहाँ पे x रहेगा. तो आप जिसके रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा. If you are differentiating, अभी मैं बताऊंगा आगे फॉर्मूले, लेकिन यहाँ समझाना चाह रहा हूं मैं आपको. If you are differentiating with respect to x, तो यहाँ पे x plus h comma y होगा. ये तो सेम रहेगा हर केस में. If you are differentiating with respect to y, तो यहाँ हो जाएगा x comma y plus k. मतलब k, h की जगह में k काम में ले लूंगा. That's it. ये सेम रहेगा. एक बात और मैं बताना चाहूंगा, आप जिस भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो यहाँ पे होगा. यहाँ पे देखिए,
आप f का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो f यहां लिख दिया मैंने, राइट। अगर आप ये g का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां g आ जाएगा। अगर आप यहां पे कैपिटल F का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां कैपिटल F आ जाएगा। So this is first order partial derivative of the function f of xy with respect to x. Similarly, with respect to y भी कर लेते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 2, fy that is del f upon del y is equal to first order partial derivative of function f with respect to y. First order partial derivative of function f with respect to y. Right? और फंडामेंटल फॉर्मूला इज इक्वल टू का साइन है ये वाला, del f upon del y is equal to limit k tending to 0 f of x comma y plus k minus f of x y divided by k. This is the fundamental formula of first order partial derivative of function f with respect to y. यहां देखिए मैंने k यूज किया है। If you are differentiating with respect to x, you just use h. If you are differentiating with respect to k, you just if you are differentiating with respect to y, you can use k. अदरवाइज आप दोनों ही केस में h भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही केस में k भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि जिसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो यहां पे आना चाहिए दोनों ही केस में, और अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x में चेंज होना चाहिए x प्लस h, y में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, और अगर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y में चेंज होना चाहिए, x में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। एंड द नोटेशन इज दिस। ठीक है, अब मैं आपको ये हुए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल का फंक्शन है इसलिए विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y मैंने बात की। अगर ये तीन वेरिएबल का फंक्शन होता x, y, z, तो ऐसे ही आप del f अपॉन del z भी फाइंड कर सकते हैं, राइट। उस केस में क्या होता, उस केस में ये होता x, y प्लस k, z माइनस f ऑफ x, y, z डिवाइडेड बाई k। ये अपने आप में रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं सिर्फ उसी को चेंज करना है, बाकी वेरिएबल्स को आपको कांस्टेंट अज्यूम करना है। दिस फंडामेंटल फॉर्मूला इज इटसेल्फ शोइंग, राइट। एक काम करता हूं, मैं आपको वो लिखवा देता हूं, आप लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि पार्शियल डेरिवेटिव की एक्चुअली फंडामेंटल डेफिनेशन को ये फॉर्मूला फुलफिल कर रहा है। आप लिख लीजिए अलग से, एक कॉलम अलग से बना लीजिए, इन पॉइंट्स में इंक्लूड मत करना। पॉइंट नंबर 1 भी डिस्कस्ड, पॉइंट नंबर 2 भी डिस्कस्ड, इसके बाद मैं 3, 4, 5 में डिस्कस करूंगा भी। अलग से आप लिखिए, इफ देयर इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड फॉर एग्जांपल, if there is function of x y z, मैं एक अलग से स्लाइड चलिए यहीं पे बना देता हूं, अलग से बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट अ मिनट।
यहाँ पे कर लेते हैं, काम करते हैं, तो बाद में मैं हटा दूंगा। कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मैंने एक एग्जांपल आपको बताया, आप अलग से कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 3 वेरिएबल का फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड वेरिएबल, एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, और हम फाइंड करना चाहते हैं एफ एक्स, मतलब द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट h is tending to 0। देखिए वो पार्शियल डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था कि जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो yz को कांस्टेंट एज्यूम करना है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो xz को कांस्टेंट एज्यूम करना है, और z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो xy को कांस्टेंट एज्यूम करना है। वो हम क्वेश्चन में करेंगे, लेकिन ये फंडामेंटल फॉर्मूले हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। आपको इवैल्यूएशन इन फंडामेंटल फॉर्मूलों को काम में लेके भी करना आना चाहिए, इसलिए फंडामेंटल फॉर्मूले बता रहा हूं मैं। So in that case, limit h tending to 0, f of x plus h, comma y, comma z, minus f of x, comma y, comma z divided by h. Any question? Sir, this is with respect to x, y and z, right? No बेटा, मैं इतनी देर से समझा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं if you are given a function of 3 variable, Okay. if you are given a function of 3 variable, for example f of x y z, and you want to differentiate with respect to x only, Okay, sir. then what will be the fundamental formula? तो आप देखिए, if you are differentiating with respect to x, तो सिर्फ x में चेंज किया है मैंने, y और z as it is है, x y z। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, हाँ सर, Got it? राइट? तो कितने भी वेरिएबल का फंक्शन हो, आप फंडामेंटल फॉर्मूला बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, 2 वेरिएबल फंक्शन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात मैं बाद में कर लूंगा, अभी आपको एक और इसी में बता देता हूं मैं, क्योंकि अभी टाइम नहीं है फिर हमारे पास। Now, if you want to differentiate this 3 variable function with respect to y, for example, कोई बताएगा मुझे क्या होगा? Limit, yes, anybody? K tends to 0. Very good. One by one. एक second. Limit k is tending to 0. Yes. F of x, comma F of x, comma y plus h plus z. y plus k, y plus k, comma comma z z minus minus f of x, y, z x, comma y, comma z. Yes. whole divided by k. Very good. What's your name? Aditya. आदित्य, करेक्ट। तो ये फंडामेंटल फॉर्मूले जिसके अभी समझ में आ गए उसको बहुत अच्छे से पार्शियल डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा। ये फंडामेंटल फॉर्मूले देखिए अपने आप में बोल रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, सो विथ रिस्पेक्ट टू वाई ओनली। सर यस सर, ये तो मेनली इम्प्लिक्ट फंक्शन है ना? मेनली इम्प्लिक्ट फंक्शन, उसमें इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं होता, इम्प्लिसिट फंक्शन होता है वो। अच्छा सॉरी सर, सर उसमें ही हम ये करते हैं ना पार्शियल डेरिवेटिव। यस, एक्चुअली क्या होता है, अब तक आपने वन वेरिएबल का फंक्शन पढ़ा है, राइट?
जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ x होता था, लेकिन अगर एक x से ज्यादा वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हो, उस केस में हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करना है। ठीक है, इट मे बी ए इम्प्लिसिट फंक्शन, इट मे बी ए एक्सप्लिसिट फंक्शन, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू फाइंड f of z for this function only, yes, can anybody tell me what will be the value of f of z? लिमिट h टेंड्स टू 0। कुछ भी ले लीजिए, h k r कुछ भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट्स योर नेम? सक्षम। सक्षम, तो मैं s ले लेता हूं, s फॉर सक्षम। Yes, लिमिट s टेंडिंग टू 0, यस, f of x comma y comma x comma y comma z plus s minus f of x y z upon s। f of x comma y comma z divided by s। Absolutely correct। और यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन f का कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे f है। आगे मैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको बताऊंगा कि उस केस में डिफरेंशिएशन आप f का ना करके fx का कर रहे होंगे तो यहाँ पे fx आ जाएगा, fy का कर रहे होंगे तो यहाँ पे fy आ जाएगा, fz का कर रहे होंगे तो वहां fz आ जाएगा। Guys, any doubt till today? No, sir. No, sir. तो ये तो फंडामेंटल फॉर्मूले हैं। इवैल्यूएशन तो बहुत सिंपल होता है, आपको भी पता है डिफरेंशिएशन करना बहुत सिंपल होता है, राइट? दीज आर द फंडामेंटल फॉर्मूलाज। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क मी। In next class, we will take some basic questions of partial differentiation, evaluation of some basic questions. Okay, guys, if you don't have any doubt, then we can log out. Please take your online test from IMCRP. The duration of the test is 15 minutes and it is up to 4 o'clock today. Thank you so much. Thank you all of you. सर Yes, please. सर IMCRP पे कभी कभी ऐसा होता है सर, जैसे एक क्वेश्चन हमने करा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए किया तो फिर सर सबमिट करने के बाद थोड़ा लेट खुलता है, और लेट खुलता है तो सर नेटवर्क इशू की वजह से सर दूसरा क्वेश्चन स्किप हो जाता है, तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, फिर वो दूसरा क्वेश्चन नहीं आता है, तो इससे सर क्वेश्चन छूट जाता है। आप ये जो भी IMCRP का टेक्निकल इशू है, आपने मृणाल सर से बात की? नो सर। एक बार आप मृणाल सर से बात कीजिए, वो प्रॉब्लम